Hello everyone, welcome to the channel. This is the part 3 on the series of learning radius of curvature. Today we will learn about some unique concept related to radius of curvature, and that concept involve differentiation of vectors. So we will first learn about differentiation of vectors. So let's start. So if we talk about vectors, we can say that vectors are the quantity which has magnitude as well as direction. So if two vectors are equal, then its magnitude as well as direction must be equal. And if we talk about two vectors are different, so in that case there are three ways in which they can be different. They can have different magnitude and same direction. They can have same direction but different magnitude. They can have different direction, different magnitude. So a vector can change in three different ways. So we can write vector change can occur in three different ways. The first way is only magnitude change and direction is fixed. In the other case, only direction change and magnitude is fixed. In the third case, magnitude and direction both changes. So if we talk about first case in which vector is changing its magnitude without changing the direction, without changing the direction. So suppose we have a vector A and we assume that in this case the magnitude of vector A, that is A, is growing, means it is increasing, and as direction is fixed, increasing with time, magnitude A is increasing with time. So in this case the derivative of vector A means dA by dt, which is itself a vector, will be in direction of A, and the magnitude of dA by dt, this is the direction, dA by dt in the direction of vector A, and the magnitude of dA by dt will be equals to the rate of increase of A, means dA by dt. This is the rate of increase of A, है ना। तो जब भी अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है और अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, देन इन दैट केस जो डी ए बाई डी टी वेक्टर है
मतलब उस वेक्टर का डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव, वो वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा, और जो उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब वेक्टर डेरिवेटिव का जो मैग्नीट्यूड है, डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड, वो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए के बराबर होगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है which is performing rectilinear motion. So suppose this is our origin and the particle is moving towards positive x direction. This is our positive x. So suppose at any instance, or suppose at time t equals to 0, the particle is at some location which we call P. तो इस मोमेंट पे जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर ये है। और सपोज पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ है, राइट राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वैसे वैसे ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, वो आर बढ़ने वाला है ना। ये आर कुछ देर के बाद यहाँ ये बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा, पार्टिकल कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, और इसका वेलोसिटी इस तरफ होगा। तो हम देख सकते हैं कि इस केस में हो क्या रहा है कि जो पोजीशन वेक्टर आर है, उसका मैग्नीट्यूड जैसे जैसे पार्टिकल दूर जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। जैसे जैसे पार्टिकल इस तरफ चलता जा रहा है, वैसे वैसे पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, उसका उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। सो इन दिस केस द डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर आर डी आर बाई डी टी, उसका डायरेक्शन किधर है, उसका डायरेक्शन इस तरफ है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी आर बाई डी टी। और जो डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड है, डी आर बाई डी टी, दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ आर, मतलब डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ आर। ठीक है। तो डी आर बाई डी टी बेसिकली है क्या, वेलोसिटी, है ना। तो बेसिकली वेलोसिटी है, तो इस केस में जो वेलोसिटी है वो आर के ही पैरेलल है, और जो हमारा वेलोसिटी है वो वेलोसिटी किसके बराबर है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ आर के बराबर है। हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। तो इस दूसरे एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं कि सपोज हमारे पास एक वेक्टर आर है, या फिर वेक्टर ए सपोज कर लेते हैं। ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं इसे एक जनरल वेक्टर ए ले रहा हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज विथ टाइम। तो अगर मैग्नीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, और जो डायरेक्शन है ए का, दिस डायरेक्शन इज फिक्स्ड, दिस डायरेक्शन इज फिक्स्ड। तो इस केस में ए का जो वेक्टर डेरिवेटिव होगा डी ए बाई डी टी, this will be anti-parallel to A, and the magnitude of dA by dt will be equals to rate of decrease of A minus dA by dt. This is the rate of decrease of A. We can write it as well. Rate of decrease of A. ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका एक एग्जांपल भी ले सकते हैं कि सपोज एक पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, and suppose this is our origin, and suppose the particle is coming closer and closer to origin. So जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे पार्टिकल
नजदीक आते जा रहा है, तो हो क्या रहा है कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर, सपोज दिस इज अवर पोजीशन वेक्टर, जैसे जैसे पार्टिकल नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पोजीशन वेक्टर घटता जा रहा है, देख सकते हैं आप एनिमेशन में, है ना। जैसे जैसे पार्टिकल नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पोजीशन वेक्टर घटता जा रहा है ना। तो किसी टाइम पे मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, और ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, ये आर घटता जा रहा है, आर का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है। तो इस केस में जो आर का डेरिवेटिव होगा, मतलब डी आर बाई डी टी, जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, ये वेलोसिटी आर के एंटी पैरेलल होगा, मतलब इस तरफ है वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जिसे हम सिर्फ v लिख रहे हैं, ये v किसके बराबर होगा, तो इस दिस v विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ r, मींस माइनस डी आर बाई डी टी। समझ में आ रहा है? इस केस में ये माइनस डी आर बाई डी टी के बराबर होगा। तो जब भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो अभी हमने क्या सीखा कि जब भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो उस केस में वेक्टर का डेरिवेटिव उस वेक्टर के अलोंग ही होने वाला है, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कितना लिखेंगे, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दैट वेक्टर। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि वो वेक्टर घट सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो उस केस में क्या होगा कि उस वेक्टर का जो डेरिवेटिव है, वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी एंटी पैरेलल टू दैट वेक्टर, एंड उस वेक्टर का जो डेरिवेटिव है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ दैट वेक्टर। नाउ we will come to the other case in which the vector is changing by changing its direction. So in this case, we can write vector is changing by changing its direction. It means magnitude is fixed. Magnitude is fixed. Now, अगर हम बात करें कि सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए एक जनरल वेक्टर है। तो मान के चल रहे हैं कि ये जो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए हमारा घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, सपोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इन दैट केस वी आर आस्किंग दैट व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ ए, मतलब इस केस में डी ए बाई डी टी कितना होगा। तो अगर हमें डी ए बाई डी टी जानना है, तो डी ए बाई डी टी क्या है, डी ए बाई डी टी का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए, और किसी भी वेक्टर का डेरिवेटिव खुद एक वेक्टर होता है। तो इस केस में जो डी ए बाई डी टी वेक्टर है, उसको अगर जानना है तो हमें दो चीज जानना पड़ेगा, एक तो उसका डायरेक्शन, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। तो इस केस में जो डी ए बाई डी टी वेक्टर है, उसका जो डायरेक्शन है, इट विल बी इन डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड इन क्लॉकवाइज सेंस, तो मतलब ऊपर की तरफ होगा। अगर ये वेक्टर मान लीजिए, अगर ये वेक्टर ओमेगा से घूम रहा होता है इन क्लॉकवाइज सेंस, तो डी ए बाई डी टी का डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है, दिस विल बी डी ए बाई डी टी, दिस इज वेक्टर ए। Now, if we talk about what is the magnitude of dA by dt, तो हम कह सकते हैं dA by dt का जो मैग्नीट्यूड है, this will be equals to ओमेगा टाइम्स a। अब ये कैसा आया, तो हम इसको एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। Will not go into the mathematical details of the derivation. We will just understand this with
एनालॉजी। तो हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म, कुछ भी, मतलब सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल सर्कल पे घूमता है विथ सम ओमेगा, है ना। तो अगर हम बात करें कि मान लेते एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, और हम उस पार्टिकल को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारा ओरिजिन कहाँ है, तो हमने ओरिजिन सेंटर पे ही मान लिया है। तो इन दिस केस दिस विल बी आवर पोजीशन वेक्टर आर। और ये जो हमारा आर वेक्टर है ये कितने से घूम रहा है, ये घूम रहा है ओमेगा से। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन का। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, विद वेदर इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेदर इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम किसी जनरल सर्कुलर मोशन का बात कर रहे हैं, एक पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है, और हमने अपना ओरिजिन कहाँ पे लिया है, सेंटर पे लिया है, और दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर आर। और पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे है, दिस इज पार्टिकल। तो अगर हम बात करें कि अगर घूमने का सेंस हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इन दिस केस वेलोसिटी वेक्टर विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस। वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। और अगर हम बात करें वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा v, ये किसके बराबर होगा, ये होगा r इंटू ओमेगा की। ना इसको अगर हम वापस से पिछले पहले जो हमने पढ़ा है उसके उसके तरीके से देखें, तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर इन दिस केस अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। और हमें दिख रहा है कि इस वेक्टर का डेरिवेटिव विच इज वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव विच इज वेलोसिटी वेक्टर, इट इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि जब भी कोई वेक्टर सिर्फ रोटेट करे विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, तो उन इन दैट केस उस वेक्टर का जो डेरिवेटिव होता है वो उस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। जैसे हमें इसमें इस केस में दिख रहा है वेलोसिटी वेक्टर आर का डेरिवेटिव है और वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। और अगर हम बात करें कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब उस डेरिवेटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वो कितने तेजी से घूम रहा है ना। वापस से इसको समझते हैं। हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर आर है और ये ओमेगा से घूम रहा है। तो इस वेक्टर का जो डेरिवेटिव है वेलोसिटी वेक्टर, इस ये किसके बराबर है, ये दिस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, है ना। लिख सकते हैं ना इसको इस तरीके से, डी आर बाई डी टी का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। यही तो हमने लिखा है अभी कुछ देर पहले, यहाँ पे देखो, हैव अ लुक, है ना। तो हम समझ रहे हैं कि इस केस में जितना तेजी से हमारा वेक्टर रोटेट करेगा उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसके डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड होगा, है ना। ठीक है, नाउ एक हम थर्ड केस डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड केस we are talking about a vector which is changing both its magnitude and direction. So इस केस में क्या कर रहे हैं, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है। सपोज एक केस ले लेते हैं जिसमें काइनेमैटिक्स का एक केस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो कि कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, और मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है। तो किसी इंस्टेंट पे क्या हो रहा है कि सपोज मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पे है। तो देख सकते हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल इस कर्व के ऊपर मूव कर रहा है वैसे वैसे पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, साथ ही ये जो पोजीशन वेक्टर है वो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, देख सकते हो, है ना। तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर आर। तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो वेलोसिटी वेक्टर पाथ के टेंजेंशियल होगा, दिस विल बी वेलोसिटी वेक्टर।
और इस वेलोसिटी वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा which is parallel to vector r, which is parallel to vector r, और इस वेलोसिटी वेक्टर का एक कंपोनेंट होगा which is perpendicular to vector r। सो सपोज ये वाला एंगल हम अल्फा मान लेते हैं, तो दिस विल बी v cos अल्फा, ये हो जाएगा हमारा v sin अल्फा। और ये जो पोजीशन वेक्टर है मान लेते हैं ये अपना ओरिएंटेशन स्पेस में ओमेगा से चेंज कर रहा है, मतलब ओमेगा से घूम रहा है ये पोजीशन वेक्टर। तो ये ओमेगा किसका ओमेगा है? ये ओमेगा, दिस ओमेगा इज द ओमेगा ऑफ आर, दिस ओमेगा इज द ओमेगा ऑफ आर। ये आर का ओमेगा है, आर का स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज करने का, एंगल चेंज करने का ओमेगा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है जो कि आर के अलोंग है। तो ये एक्चुअली में क्या कर रहा होगा, ये आर के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा होगा, है ना। जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा था कि अगर कोई वेक्टर बढ़ता जाए या फिर कोई कोई वेक्टर घटता जाए, तो उस केस में क्या होगा बताओ? उस केस में जो उस वेक्टर का डेरिवेटिव होगा वो या तो उसके अलोंग होगा या तो उसके एंटी पैरेलल होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम इस कर्व पे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये जो आर है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए इसका इस वेक्टर का एक डेरिवेटिव किसके अलोंग होगा? इस आर के अलोंग, इस आर का डेरिवेटिव इस आर के अलोंग होगा, ये वी कॉस अल्फा होगा। तो ये वी कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? दिस वी कॉस अल्फा कैन बी रिटन एज डी आर बाई डी टी, क्योंकि आर बढ़ रहा है और वी कॉस अल्फा ही क्या कर रहा है, आर को बढ़ा रहा है, आर के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है। और अगर हम देखें वी साइन अल्फा, जो भी वेलोसिटी का वेक्टर आर के परपेंडिकुलर होता है वो आर को रोटेट कराता है। तो हम कह सकते हैं वी साइन अल्फा विल बी इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ से ओमेगा हमारा आ जाएगा वी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आर। सो ये हम देख सकते हैं, यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नाउ यही चीज अगर हम, जो भी हमने किया है यही चीज अगर हम वेलोसिटी वेक्टर के लिए करें तो फिर कैसा हमको दिखेगा? लेट्स सी। तो अगर हम बात करें, मान लेते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। सो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि पार्टिकल हमारा सेम ओमेगा से घूमता है विदाउट चेंजिंग इट्स ओमेगा, विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। स्पीड भी कांस्टेंट होता है, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर हम इस केस में बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल इस कर्व पे मूव कर रहा है, सर्कल पे मूव कर रहा है, वैसे वैसे उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इस केस में हो क्या रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इस केस में हो क्या रहा है कि हमारा स्पीड चेंज नहीं हो रहा है ना। ये दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है दिस इज चेंजिंग ड्यू टू डायरेक्शन, है ना। और अगर हम बात करें कि अगर हमारा वेलोसिटी वेक्टर, अगर हम जानना चाहें कि हमारा वेलोसिटी वेक्टर कितने ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ध्यान से देखो। अगर हम बात करें हमारा पोजीशन वेक्टर जो है, जो कि हम ओरिजिन से ले रहे हैं, तो ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, ये आर के घूमने का ओमेगा है।
है ना। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी वेक्टर के घूमने का कितना ओमेगा होगा, तो ध्यान से देखो, अगर ये थीटा से रोटेट किया है, तो इससे पहले हमने बात किया है कि अगर कोई भी लाइन थीटा से रोटेट करता है तो उसका परपेंडिकुलर भी थीटा से रोटेट कर जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसको शिफ्ट करके मैं यहाँ पे ले आऊँ, इसको शिफ्ट करके अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ, एक सेकेंड, अगर इसको शिफ्ट करके मैं यहाँ पे ले आऊँ, सो इन दैट केस ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जब भी पार्टिकल तुम्हारा सर्कुलर मोशन में घूमता है, सो इन दैट केस जो हमारा पोजीशन वेक्टर का ओमेगा होता है और जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर का ओमेगा होता है, देखो देखो ध्यान से, जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है वो भी रोटेट कर रहा है। पोजीशन वेक्टर तो रोटेट कर ही रहा है, साथ ही साथ वेलोसिटी वेक्टर भी रोटेट कर रहा है। तो जब भी हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैंने एग्जांपल के तौर पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया, ये सेम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए भी वैलिड है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या 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 कौन सा चीज़ वैलिड है? वैलिड ये है कि जिस जिस ओमेगा से पोजीशन वेक्टर घूमता है, सेम उतने ही ओमेगा से हमारा वेलोसिटी वेक्टर भी घूमता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इन केस ऑफ इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, द ओमेगा ऑफ पोजीशन वेक्टर drawn from center and velocity vector is same। सर्कुलर मोशन के केस में जो पोजीशन वेक्टर का ओमेगा है और जो वेलोसिटी वेक्टर का ओमेगा है वो सेम है। लेकिन याद रहे, पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से लेना है, ये चीज़ हमेशा कब वैलिड है, ये वाला जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट कब वैलिड है? दिस स्टेटमेंट इज ओनली वैलिड व्हेन पोजीशन वेक्टर इज टेकन फ्रॉम द सेंटर। अगर मैं अपना ओरिजिन कहीं यहाँ पे ले लूँ और यहाँ से पोजीशन वेक्टर बनाऊँ पार्टिकल का, यहाँ से पोजीशन वेक्टर बनाऊँ पार्टिकल का, तो उस केस में क्या होगा, इस पोजीशन वेक्टर का ओमेगा और इस वेलोसिटी वेक्टर का ओमेगा दोनों अलग अलग होगा ना। इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। सपोज करो तुमने एक ऐसा क्वेश्चन भी बनाया होगा, जैसे सपोज हमने ओरिजिन यहाँ पे ना लेने की जगह पे हमने ओरिजिन यहाँ पे ले लिया। सपोज दिस इज आवर ओरिजिन 1 एंड दिस इज आवर ओरिजिन, ये सेंटर है, ओ सेंटर है और O1 हमने रिम पे लिया है, और O के अबाउट में पार्टिकल का ओमेगा दिया हुआ है ओमेगा, और O1 के अबाउट में पार्टिकल का ओमेगा दिया हुआ है ओमेगा 1, और तुमसे पूछ रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा 1। तो देखो ध्यान से, इस केस में क्या होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी कहीं इस तरफ होगा। तो मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पे है और ये एंगल हम मान सकते हैं अल्फा, है ना। ये कितने से घूम रहा है, ओमेगा से, और ये एंगल हमने अल्फा मान लिया। अच्छा, ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला दिस एंगल विल बी अल्फा/2। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एंगल मान लो मैंने थीटा ले लिया, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और थीटा प्लस थीटा, ये इंटीरियर एंगल का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। मतलब 2θ इक्वल्स टू अल्फा, यानी थीटा इक्वल्स टू अल्फा/2, है ना। नाउ अभी देखो, ओमेगा का मतलब क्या है, ये जो ओमेगा मैंने यहाँ पे दिया है, इस ओमेगा का मतलब क्या है, इस वेक्टर के घूमने का ओमेगा, और उसको हम लिख सकते हैं दिस ओमेगा इक्वल्स टू डी अल्फा/dt, है ना। नाउ अगर हम ओमेगा 1 का बात करें तो ओमेगा 1 किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल्स टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ थीटा, है ना। ये कितने तेजी से रोटेट कर रहा है, ये किसके बराबर होगा, इस थीटा के टाइम डेरिवेटिव के।
नाउ दिस ओमेगा 1 विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ थीटा, और थीटा कितना है, अल्फा बाई 2. सो दिस विल बिकम हाफ ऑफ डी अल्फा बाई डी टी, और ये जो डी अल्फा बाई डी टी है ये किसके बराबर हो गया, ओमेगा बाई 2 के. तो तुम देख पा रहे हो कि अगर मैंने ऑरिजिन कहीं और ले लिया, अगर मैं ऑरिजिन यहाँ पे लूँ, तो इसका ओमेगा, इस पोजीशन वेक्टर का ओमेगा कितना होगा, ओमेगा ही होगा, है ना. इस पोजीशन वेक्टर का ओमेगा कितना होगा, ओमेगा ही होगा. और इस वेलोसिटी वेक्टर का ओमेगा कितना होगा, ओमेगा होगा. लेकिन अगर मैंने अपना ओरिजिन यहाँ पे ले लिया, तो इन दैट केस इस पोजीशन वेक्टर का जो ओमेगा है, ये ओमेगा 1 है, और ये कितना है, ओमेगा बाई 2 के बराबर है. लेकिन इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा ये तो पाथ के टेंजेंशियल होगा, और ये कितने से रोटेट कर रहा होगा, इस वाले ओमेगा से, मतलब ओमेगा से, है ना. तो दोनों अलग अलग हो गया. तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन पोजीशन वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर. ठीक है ना. तो यहाँ से तुमको एक और चीज पता लग रहा है कि द ओमेगा ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द ओमेगा ऑफ वेलोसिटी वेक्टर डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन द पाथ, डिपेंड्स ऑन द shape of the path, shape of the path and speed. But if we talk about omega of radius vector या फिर position vector, then it depends upon the origin and the motion of the particle. तो मतलब अपना, अगर मैं origin अलग अलग जगह लेके जाऊं, तो अलग अलग पोजीशन वेक्टर आएगा, और उस अलग अलग पोजीशन वेक्टर का अलग अलग ओमेगा आएगा. समझ में आ रहा है. लेकिन जो वेलोसिटी वेक्टर का ओमेगा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, पहला तो मोशन के ऊपर, और दूसरा तुम्हारा उसका शेप कैसा है मोशन का, है ना, किस पाथ पे वो जा रहा है. ठीक है. नाउ अगर इसके आगे हम बात करें, तो देख सकते हैं इसका लास्ट हमने कहाँ देखा था, इसको वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर बात कर रहे थे. ठीक है. तो अगर हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस केस में जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और ओरिजिन हम सेंटर पे लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर अगर इसका ओमेगा है, तो ये भी ओमेगा से ही घूम रहा होगा. तो अगर वेलोसिटी वेक्टर, अगर हम बात करें कि दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज यूसीएम, तो ओमेगा कांस्टेंट होगा, और वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब स्पीड इज कांस्टेंट. तो इस केस में जो हमारा स्पीड है ये कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी वेक्टर सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रहा है. तो इस केस में जो वेलोसिटी वेक्टर का जो डेरिवेटिव होगा, विच इज एक्सेलरेशन वेक्टर, वो एक्सेलरेशन वेक्टर किधर आएगा, देखो, जो ये जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर ये घूम रहा है ओमेगा से. मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस वाले फिगर को यहाँ पे ड्रॉ किया है. तो जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर ये घूम रहा है ओमेगा से. तो इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर होगा वो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा, है ना. और ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है dv बाई dt, इसका जो मैग्नीट्यूड है a, ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू v इंटू ओमेगा. समझ में आ रहा है. और यहाँ पे जो ओमेगा लिख रहे हैं, दिस इज ओमेगा ऑफ दिस इज ओमेगा ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. और अगर हम बात करें कि अगर हम हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है,
अगर हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और अगर हमने पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर सेंटर से ही बनाया है, तो इन दैट केस ये ओमेगा पोजीशन वेक्टर का भी होगा। मतलब ओमेगा इक्वल्स टू हम वी बाय आर भी लिख सकते हैं, where r is the length of the position vector drawn from the origin. नाउ अगर हम बात करें इसको, अगर हम ओमेगा को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है वी स्क्वायर बाय आर। और ये फेमस रिलेशन है, तुमने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा पढ़ा रखा होगा। यहाँ पे जो ये वाला एक्सेलरेशन है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, है ना, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। और देख सकते हो ये वाला एक्सेलरेशन किस वजह से आ रहा है, ये वाला एक्सेलरेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर का जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से आता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इस वजह से आता है कि वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है ना। नाउ अगर हम दूसरा केस का बात करें, जैसे कि मान लो अ, हम मान लेते हैं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, लेकिन इस बार जो हमारा ओमेगा है वो कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब हमारा जो वेलोसिटी है इट विल बी वेरिएबल। तो इस केस में क्या होगा कि ये हमारा वेक्टर डेरिवेटिव का दूसरा वाला केस बनेगा, जहाँ पे कोई भी वेक्टर दो तरीके से चेंज कर रहा होता है। एक तो वो अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा होता है, दूसरा अपना डायरेक्शन भी बदल रहा होता है। तो इस केस में क्या होगा कि जो वेलोसिटी वेक्टर है ये अपना मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। ये जो v है इसका जो लेंथ है v, इस वेलोसिटी वेक्टर का जो लेंथ है ये लेंथ भी चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये लेंथ बढ़ रहा है, सपोज v इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि v के बढ़ने के कारण इसके इसके मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से एक एक्सेलरेशन इसी के डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना, एक एक्सेलरेशन इसी के डायरेक्शन में आ जाएगा। और इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये टैंजेंट के अलॉन्ग है। और ये जो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये किस वजह से आया है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो देन इट विल बिकम इक्वल्स टू dv बाई dt, है ना। और ये v क्या है, v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब स्पीड। तो हम कह सकते हैं जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इट इज डेरिवेटिव ऑफ स्पीड। और क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर घूम भी रहा है, तो अगर ये वेलोसिटी वेक्टर घूम रहा है तो इसको घूमने की वजह से, इसके डायरेक्शन चेंज की वजह से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी आएगा v स्क्वायर बाय आर, या फिर v इंटू ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, है ना। इसको बोलेंगे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। जो हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा वो नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आ जाएगा, दिस विल बी आवर नेट एक्सेलरेशन। और ये जो नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ये किसके बराबर होगा, ए नेट। ए नेट कितना हो जाएगा, इसको ए एन नहीं लिखते हैं, ए नेट लिखते हैं। ए नेट कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए सेंट्रिपिटल का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ डीवी बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसका दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट इन दिस केस हो क्या रहा है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, बट इन दिस केस वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज स्पीड, ये स्पीड डिक्रीज कर रहा है। तो अगर स्पीड डिक्रीज करेगा तो इन दिस केस जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मतलब जो एक्सेलरेशन इस वजह से आ रहा है क्योंकि स्पीड घट रहा है, वो अपोजिट सेंस में आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई dt। मैंने बताया था कोई वेक्टर अगर घटे,
कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड घटे तो उस केस में उस वेक्टर का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? उस वेक्टर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ दैट वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे v घट रहा है, उसका v का जो मैग्नीट्यूड है वो मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो उस मैग्नीट्यूड के डिक्रीज की वजह से भी एक एक्सेलरेशन आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ v विच इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी टी। याद रखना हमेशा डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा y के इंक्रीज का रेट बताता है और माइनस डी वाई बाई डी एक्स y के डिक्रीज का रेट बताता है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें कि क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर घूम भी रहा है ओमेगा से, मान लेते हैं ऐसा पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो उस केस में वेलोसिटी वेक्टर के घूमने की वजह से भी एक एक्सेलरेशन आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? अगेन वी स्क्वायर बाय आर के, और जो टोटल एक्सेलरेशन या फिर नेट एक्सेलरेशन होगा वो ये किसी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन। तो देख सकते हो इस केस में जो हमारा नेट एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी वेक्टर उनके बीच में जो थीटा बन रहा है, दिस थीटा इज ऑब्ट्यूज। और इस केस में तुमने देखा होगा कि इस केस में नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, दिस थीटा इज एक्यूट। तो यहाँ से तुम्हें ये भी सीखने को मिल रहा है कि जब भी whenever the angle between velocity vector and acceleration vector is is acute, then speed increases। देख सकते हो, क्योंकि अगर एंगल एक्यूट होगा तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट, नेट एक्सेलरेशन के का एक कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में आएगा जो कि वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, if the angle between velocity vector and acceleration vector is obtuse, then in that case speed will decrease, है ना। the angle between velocity vector obtuse, then speed will decrease, है ना। देख सकते हो इस केस में क्या है, एंगल ऑब्ट्यूज है, तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर के ऑपोजिट है जो कि वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को घटा रहा है कंटिन्यूअसली, है ना। नाउ अगर हम बात करें तो हमने सीखा कि अगर पार्टिकल किसी भी कर्व पे मूव करे, तो किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पे है, तो हम मान सकते हैं थोड़े टाइम के लिए ये जो पाथ पे मूव कर रहा है ये किसी एक सर्कल का हिस्सा होगा, और जो अभी हमने सीखा है उसको हम यहाँ भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं पार्टिकल का वेलोसिटी किसी इस डायरेक्शन में होगा, तो मान लेते हैं कि तुम देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे जैसे पार्टिकल इस कर्व पे मूव कर रहा है वैसे वैसे इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका डायरेक्शन बदल रहा है, और हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये इसका स्पीड भी चेंज हो सकता होगा, स्पीड भी चेंज हो रहा होगा। तो अगर स्पीड भी चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी वेक्टर दोनों तरीके से चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, दूसरा उसका डायरेक्शन भी बदल रहा है जैसे जैसे ये कर्व पे मूव कर रहा है। तो इन दैट केस सपोज दिस इज द एक्सेलरेशन, इस इंस्टेंट में मान लिया हमने कि एक्सेलरेशन है, और सपोज दिस इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। तो फिगर के हिसाब से ये थीटा क्या है, एक्यूट है, और इस केस में वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है स्पीड बढ़ रहा होगा। तो हम कह सकते हैं इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इसके अलोंग होगा, दिस इज ए कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा विच इज ए साइन थीटा। और इस ए साइन थीटा को हम कह सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, और ये आर कितना आ जाएगा हमारा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा। तो ये ए साइन थीटा क्या है, दिस इज द component of acceleration which is perpendicular to the velocity। इसको हम ए परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, ए परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, component of
component of acceleration which is perpendicular to velocity। तो देख सकते हो इस केस में, है ना, कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन पता हो, वेलोसिटी पता हो, तो हम एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट निकाल लेंगे विच विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और उसका यूज करके हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। सो दिस इज अनदर मेथड। इसके पहले मैंने तुमको दो मेथड बताए हैं। एक तुम्हारा डायरेक्टली पाथ से निकाल सकते हो, अगर तुम्हारे पास पाथ का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला है तो उस केस में तुम डायरेक्ट वहां से फॉर्मूले से निकाल लोगे। अगर पाथ तुमको तुम्हारे पास पोलर फॉर्म में है तो पोलर कोऑर्डिनेट वाले फार्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारा मेथड 3 हो गया। दिस इज आवर मेथड 3 कि अगर हमारे पास पार्टिकल का मोशन पता हो, अगर हमारे पास पार्टिकल का वेलोसिटी पता हो, पार्टिकल का एक्सेलरेशन पता हो, तो इन दैट केस हम इन दोनों का यूज करके डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे, डायरेक्टली हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? नाउ इसके अलावा एक और मेथड है, अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी हमारे पास अ, मान लो हमारे पास मैंने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाए हैं, ठीक है। मैं नेट वेलोसिटी नहीं बना रहा हूँ, मैं वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना रहा हूँ। सपोज दिस इज v1 एंड सपोज दिस इज v2। और समहाउ मान के चल रहे हैं कि जो वेलोसिटी का जो ये v2 है, नेट वेलोसिटी किसी इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, किसी डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी होगा, v इसको लिख रहा हूँ, v1 v2 आर द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। और ये जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पे ही हो, किसी ऑब्लिक भी हो सकता है। मैंने इसको दिखाने के लिए 90 डिग्री पे ले लिया है, v1 v2 को 90 डिग्री पे ले लिया है, कुछ और एंगल भी हो सकते हैं इनके बीच में। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो v2 है, अज्यूम दिस टू बी कांस्टेंट। मान ले रहे हैं दिस इज कांस्टेंट, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। और मान के चल रहे हैं कि जो हमारा v1 है, दिस v1, इसका मान लेते हैं मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, magnitude is constant, magnitude is constant, but this v1 is rotating with some omega, है ना, this v1 is rotating with some omega. So in this case how will you find radius of curvature? कैसे निकालोगे radius of curvature, बताओ। So what we will do, since v1 is rotating with omega, v2 तो चेंज कर नहीं रहा है, तो जो भी एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव है। और क्योंकि ये डेरिवेटिव है वेलोसिटी का, और वेलोसिटी किसके बराबर होगा, वेलोसिटी हम लिख सकते हैं v1 प्लस v2 के बराबर होगा। और क्योंकि हमारा जो v2 कांस्टेंट है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ dv1 बाई dt के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में वेलोसिटी वेक्टर v1 हो गया, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन किधर आएगा, इसकी वजह से एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा, और ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हम लिखना चाहें कितना होगा, तो हम ए को लिख सकते हैं v1 इंटू ओमेगा। और अगर हमें नेट एक्सेलरेशन पता लग गया तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो कहानी बहुत ईजी है। ये हमारा v2 हो गया, ये हमारा v1 हो गया, और ये हमारा नेट वेलोसिटी हो गया, ये हमारा नेट वेलोसिटी हो गया अभी, और एक्सेलरेशन हमें मालूम है इस तरफ। तो हम क्या करेंगे, हम इस एक्सेलरेशन का वापस से दो कंपोनेंट लेंगे। एक कंपोनेंट जो कि इस नेट वेलोसिटी के अलोंग होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा, इस केस में दिए गए डायग्राम के हिसाब से। इस केस में ये एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा
और एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट which is perpendicular to the net velocity. This will be a perpendicular. और जब हमने a परपेंडिकुलर निकाल लिया तो उसके बाद हमारे पास आराम से रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा. दिस विल बी a परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. तो कभी कभी हमें ऐसा सिचुएशन मिलेगा इन many problems of kinematics. You will see this situation और तुम निकाल सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है.